Hello and welcome to Pratham Test Prep. My name is Uttam. Today we will discuss about the CRISE application process for 2023. In this video, we'll also talk about the different campuses that CRISE has to offer. Along with that, we will see the eligibility criteria, selection process, and the overall step-by-step process for filling up the form for CRISE University. Before moving on to the next slide, I would like to take you through the different applications which has already been released by other universities, and we'll see the deadlines also. So here we can see this is the Pratham's PSI's account where all the enrolled students have access to this portal. So here we have segregated all the different applications, and you can see the deadline available for all these universities and colleges which is released. Particularly if we talk about CRISE, so CRISE they have the application closing on 30th of April. Similarly, for UPS Dehradun, we can see April 2023. So yet they didn't have announced any particular date, but yes, by April end they are closing the application. So for IIM Rohtak, we can see they have IPL program. So for IPL, which is BBA LLB program, this is a 5-year integrated program. So this particular program, they have closing deadline by 20th of April. Similarly, we can see for Manipal and Symbiosis. So if you scroll down, you can see the details available for different applications and the step-by-step process how to fill the form correctly. So we can see the PDF support is here, video support is here for your reference. You can also see the form link available here and the eligibility criteria, selection process, along with that, the application fee. So all the details available on your portal. You just have to log into your dashboard and there you have all the details. You click on this form link and then you start filling up the form. So for CRISE, I'll just take you through this CRISE application form. So here you can click and you can start filling up the form along with this video. So यहाँ से शुरू करते हैं. यहाँ से आप जैसे फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एक पेज पे वेयर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. वहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग आपको गाइड करेंगे कैसे आपको फॉर्म करेक्टली फिल करना है. तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे. यहाँ पे प्रथम नोटिस है. सो दिस पर्टिकुलर नोटिस बेसिकली एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए बेसिक डूज एंड डोंट समझने के लिए. नाउ हियर वी हैव डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. तो हमें क्राइस यूनिवर्सिटी के फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. सो उसके लिए हमें चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज लिमिट होना चाहिए 100 KB यानी कि 100 KB और वो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में. आपको साथ में 10th की मार्कशीट चाहिए, 11th की मार्कशीट चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर जो भी पेमेंट मेथड आप ट्राई करना चाहते हैं वो पेमेंट मेथड अवेलेबल होगा एट द एंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस. सो 10th और 11th की मार्कशीट हमें क्यों चाहिए गाइस. सो हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में हमें ये डिटेल्स फिल करनी होती है. सो उसके लिए हमें ये पर्टिकुलरली दोनों मार्कशीट चाहिए. सो क्राइस में 11th की मार्कशीट चाहिए. आपको मैं आगे फॉर्म के प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस है. सो इफ वी सी BBA हैज डिफरेंट स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम एट क्राइस्ट. सो क्राइस्ट के अलग अलग कैंपसेस हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेग्रीगेटेड कर रखे हैं हमने. एंड उसके साथ में अगर आप देखेंगे BBA ऑनर्स प्रोग्राम है, BBA रेगुलर प्रोग्राम है. Along with that, they have BBA FinTech and BBA Finance Marketing Analytics and different courses they have. सो अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप देखना चाहते हैं फर्दर डिटेल्स क्या है आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. ये हाइपर लिंक यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ है. सो इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे वो पर्टिकुलर कोर्स का डिटेल आपको मिल जाएगा. सो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में दे हैव डिफरेंट कोर्सेज जो कि मेजरली बीकॉम की कोर्सेज हैं. सो बीकॉम में दे हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम जैसे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है. They also have applied finance and analytics. वैसे ही आप देख सकते हैं बीकॉम प्रोफेशनल. तो ये हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दे हैव डिफरेंट अलग अलग सिलेबस है उनका जिसको बोलते हैं करिकुलम. सो डिफरेंट करिकुलम की बेसिस पे ये सारे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं. सो यू कैन गो थ्रू द सिलेबस एंड द करिकुलम बाय क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक. और वैसे ही आप देख सकते हैं डिफरेंट कैंपसेस सेग्रीगेटेड कर रखे हैं हमने कि कौन से कैंपस में ये पर्टिकुलर कोर्सेज अवेलेबल हैं. School of Arts and Humanities में we can see they have journalism, digital media and English. इसको बोलते हैं ट्रिपल मेजर प्रोग्राम जो क्राइस यूनिवर्सिटी ऑफर करता है. सो यहाँ पे आप तीनों ही स्ट्रीम में तीनों ही डोमेन में आप अपना बैचलर डिग्री परस्यू करते हो. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज अवेलेबल एट बेंगलुरु सेंट्रल कैंपस. सो बेंगलुरु सेंट्रल कैंपस में अवेलेबल है ये.
Along with that, we can see उसी में ही ट्रिपल मेजर प्रोग्राम में दे हैव अनदर कॉम्बिनेशन विच इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड मीडिया along with that इंग्लिश. सो ये भी प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हो. एंड उसके बाद हम देखते हैं BA लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम्स अवेलेबल एंड BA मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम अवेलेबल है. सो ये डिफरेंट कैंपसेस में अवेलेबल, लाइक बेंगलुरु का एक और कैंपस उनका यशवंतपुर एंड बेंगलुरु में बैनरगट्टा रोड कैंपस है. सो यहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी हैव स्कूल ऑफ साइंसेस. सो यहाँ पे आप BCA प्रोग्राम एंड कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स देख सकते हैं. दे ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड BSc इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स. सो ये जो प्रोग्राम ये भी आप परस्यू कर सकते हैं. हियर वी कैन सी सोशल साइंसेस प्रोग्राम. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है कम्युनिकेशन मीडिया साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए. सो अगेन ये ट्रिपल मेजर प्रोग्राम है. तो यहाँ से ये आप देख सकते हो डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, eligibility criteria. So eligibility criteria for different courses are different, but majorly we'll talk about these courses because moreover all the courses have the similar criteria. जैसे अगर मैं बात करूँ BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, सो वहाँ पे 55% क्राइस्ट ने दे रखा है विच इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अलॉन्ग विद दैट आपके पास इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स या स्टार्ट्स होना चाहिए क्लास 12th में. Similarly, we can see for BCom and BCom Strategic Finance Honors and other BCom program के लिए eligible है, जिसमें eligibility criteria है 10+2, which means आपका 12th class पास होना चाहिए किसी भी recognized board से. So and that should be not less than 60%. So आपका 12th class में 60% से ऊपर स्कोर होना चाहिए. Above 60% स्कोर यहाँ पे required है. So you can also see for BBA Finance and BBA International programs. Along with that, you can see for BSc Data Science program and BBA LLB program. So moving on to the next slide, here we have the slide for student who wants to take the admission based on the NRI category. So यहाँ पे NRI category के लिए आपको Indian income tax के अंदर defined होना चाहिए कि आप NRI हैं. जो इनकम टैक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका NRI डिफाइंड होना चाहिए. Either one of the parent is outside India except नेपाल. तो नेपाल के अलावा अगर कोई भी आपके पेरेंट बाहर वर्किंग है या फिर वो उनको रेजिडेंशियल परमिट मिला हुआ है, सो उस बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो NRI कैटेगरी में. इंडियन सिटीजन फाइनेंस बाय एनी एजेंसी आउटसाइड इंडिया इवन इफ पेरेंट्स आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. सो अगर आपके कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे वर्किंग है इंडिया में ही एंड इफ anyone from the outside India is sponsoring you, लाइक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी एजेंसी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो वो अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस केस में भी NRI कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में. नाउ वी हैव इंडियन सिटीजन हु हैव परस्यूड स्टडीज फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम इन एनी फॉरेन और इंडियन सिलेबस आउटसाइड इंडिया. सो अगर आप बाहर से अपना क्लास 12th या +2 का स्टडी करके आ रहे हैं एंड देन इफ यू वांट टू अप्लाई हियर, सो उस केस में भी आप NRI कैटेगरी के अकॉर्डिंग NRI कैटेगरी के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं. NRI फी इज एप्लीकेबल फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विच इज applicable for all the candidates who have pursued and completed their last qualification exam from outside India are NRI candidate who have applied under NRI category. So इसको एक बार आप go through कर लीजिए. Now we have selection process. So selection process we can see for law course. So CRISE has a skill test which is basically micro presentation. Along with that they have assessment of past performance in class 10th and 12th. So these are the assessment process that CRISE has for law courses. Similarly, we can see for management courses and for social science courses. So here we can see for these all courses, including the psychology and data science courses, CRISE has entrance test, micro presentation, personal interview round, and assessment of past performance in class 10th and 12th. So here we can see एक आपका entrance test है. Then you have a skill assessment test, which could be your micro presentation or including essay writing. Then we have personal interview round, and then also depending on your class 10th and 12th score, the final your selection process would be done. Next we have BCom and BCom finance and accountancy and other BCom program के लिए selection process जो होगा वो आपके class 12th के academic performance पे based होगा.
So moving on to the next slide, here we can see application process for क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. सो जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिकली यहाँ से आपको रजिस्टर करना है. सो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए जैसे ये आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, सेम लिंक इज अवेलेबल है. यहाँ से भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है, अदरवाइज यू कैन जस्ट टाइप इट आउट इन योर ब्राउजर. वंस यू कम टू दिस पर्टिकुलर पेज, यहाँ से आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पे. सो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सो यू हैव नाउ दिस इंटरफेस जहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंटर करना है. उसके बाद क्लिक करेंगे रजिस्टर पे. सो वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, आपके पास एक ओटीपी आएगा जो आपके ईमेल आईडी पे जाएगा. सो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करते टाइम दिया है, उसी ईमेल पे आपके पास ओटीपी जाएगा. सो दिस ओटीपी इज हियर. आपको वो ओटीपी लेना है एंड आपको एंटर करना है. सो ओटीपी एंटर कर दिया, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा. उसके बाद आपके पास एक कोर्स सिलेक्शन का इंटरफेस आएगा. देयर यू हैव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. सो इस टैब पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. सो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा आपके पास. तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए अप्लाई ऑनलाइन, एंड देन आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन का विंडो ओपन हो जाएगा. सो नाउ यू हैव टू गिव कैंपस प्रेफरेंस अलॉन्ग विद दैट बेसिक डिटेल वेरीफाई करनी होती है. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बीबीए सिलेक्ट किया है. सो फॉर बीबीए आई हैव सिलेक्टेड बेंगलुरु कैंपस एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, जो कि बेंगलुरु सेंट्रल है. देन आई हैव सिलेक्टेड बेंगलुरु कैंगरी कैंपस एज माय सेकंड प्रेफरेंस. देन आई हैव सिलेक्टेड दिल्ली एनसीआर कैंपस. सो मैंने ये अपना प्रेफरेंस इस ऑर्डर में रखा है. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हुए फिल कर रहे हैं, सो वो सारे अपना प्रेफरेंस ऑर्डर जो है इसी ऑर्डर में रखिए, बिकॉज मेन कैंपस जो है उनका वो बेंगलुरु सेंट्रल ही है, एंड बेंगलुरु का ही कैंगरी कैंपस या बैनरघट्टा कैंपस आपके पास आएगा, तो उसको भी आप एज इन सेकेंड प्रेफरेंस रख सकते हैं, बिकॉज वो मेन कैंपस के पास ही है. देन यू हैव दिल्ली एनसीआर कैंपस और पुणे कैंपस. सो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस कि आप कौन से कैंपस में फिर जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको सेकेंड या थर्ड ऑप्शन को रख सकते हो. देन यू हैव टू वेरीफाई योर डेट ऑफ बर्थ. Then you have to put here your country code and the phone number. So country code for India is 91. So I have simply put it 91. Then उसके बाद मैंने अपना phone number यहाँ पे type किया है. Then I have to click here as continue. So once I click on this continue button, now I have a terms and condition page on the screen. So वो terms and condition page में first आपको scroll down करना है, यहाँ पे tick करना है. Then you click on this accept button. जैसे आप accept button पे click करोगे, नेक्स्ट विंडो एक ओपन हो जाएगा जिसमें आपके कोर्स से रिलेटेड एक और टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 3 चेक बॉक्स मिलेंगे. सो यू हैव टू क्लिक ऑल 3 चेक बॉक्स हियर. देन यू क्लिक हियर एज एक्सेप्ट. सो जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, नाउ यू हैव द फाइनल एप्लीकेशन विंडो. यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपका जेंडर वो आपको सिलेक्ट करना है. देन यू हैव द ईमेल आईडी विच इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सो वो यहाँ पे शो करेगा. नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करना है, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई थ्रू एनआरआई स्पॉन्सरशिप, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था. सो अगर आपको करना है तो आपको येस करना है. उसके फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको यहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज को नो करके आप प्रोसीड कीजिए. इफ यू हैव आधार कार्ड, सो आधार कार्ड वाला कॉलम मैंडेटरी नहीं है. सो गाइस आप देखेंगे कि यहाँ पे जिस कॉलम को हमें फिल करना है, सो ऑल दोस कॉलम्स आर मैंडेटरी एंड हाईलाइटेड इन रेड डॉट. सो हियर वी कैन सी all the mandatory fields are highlighted in red dot. So मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड फिल करने का mandatory column नहीं है, so I can skip this part. और उसके बाद मैं blood group पे आता हूँ. So blood group I have selected. Now I have to select whether I have any extracurricular activities and sports participation, or if I am a differently abled. So I have selected the options accordingly. Now the second language is Hindi. Yes, my second language is Hindi because my first language is my mother tongue. सो डिपेंडिंग ऑन योर सेकेंड लैंग्वेज, लाइक योर फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी, उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड लैंग्वेज को चूज कर सकते हो. सो यू कैन सेलेक्ट द सेकेंड लैंग्वेज है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. देन आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी है, लाइक योर बर्थ डिटेल्स. सो बर्थ प्लेस डिटेल्स में यू हैव प्लेस, कंट्री एंड स्टेट. सो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कीजिए. जैसे आप स्क्रोल डाउन करेंगे, नाउ यू हैव दीज डिटेल्स वेर यू हैव टू फिल द एड्रेस एंड फर्दर डिटेल्स. एड्रेस पे यू कैन सेलेक्ट रूरल या अर्बन एरिया से आप बिलोंग करते हैं. आपको यहाँ पे अगेन मोबाइल नंबर फिल करना है. एड्रेस कंप्लीट फिल करना इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ये रेसिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है. यहाँ पे आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन, आई मीन करंट एड्रेस का डिटेल आएगा विच इज मैंडेटरी. यहाँ पे अगेन
मदर टंग का ऑप्शन दे रखा है, सो दैट इज मैंडेटरी, बट पासपोर्ट डिटेल इज नॉट मैंडेटरी। सो अगर आपका पासपोर्ट नहीं भी है या फिर है तो ये फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ये पर्टिकुलर सेक्शन फिल करना मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। करंट एड्रेस मैं फिल करता हूँ यहाँ पे, सो दिस इज मैंडेटरी अगेन। सो जैसे ही मैं करंट एड्रेस फिल करता हूँ, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, वेदर द करंट एड्रेस इज सेम एज योर परमानेंट एड्रेस। सो इसको आप यस कर दीजिए, अगर आप सेम है तो यस करके आप इसको सेम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन नो एंड देन यू कैन क्लिक एंड फिल द फर्दर डिटेल्स ऑन द परमानेंट एड्रेस सेक्शन। सो सेम विंडो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। Now I have to fill the qualification details where I have to fill all the 10th class detail. So I have selected the board, then I have to fill the school name. So school name में drop down में कुछ आपके पास options नहीं आएगा, so that is why you have to select other, then you have to fill, आपको टाइप करके यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। Then you have to select your country of institution which is India, so I have selected India, and then institution state, सो दिल्ली में स्कूल है, सो आपको दिल्ली सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सो 10th क्लास पास आपने 1 अटेम्प्ट में किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, तो यस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट में 1 करना है। पासिंग ईयर आपका 2020 है, 21 है, सो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कीजिए जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास किया है। देन यू हैव टू सिलेक्ट द पासिंग मंथ। सो पासिंग मंथ यूजुअली यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम जब आपका मार्कशीट या रिजल्ट आया था आपके पास। सो जैसे आपका रिजल्ट रिलीज हुआ था जुलाई में, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मंथ ऑफ पासिंग। सो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्टेन मार्क्स में आपको फिल करना है जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं। सो टोटल ऑब्टेन मार्क्स कुड बी लाइक आपके 5 सब्जेक्ट्स थे क्लास 10th में, सो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आपके टोटल ऑब्टेन मार्क्स क्या है। सिमिलरली टोटल जो सब्जेक्ट्स आपने कंसिडर किया है उसके अकॉर्डिंग उसका टोटल मार्क्स क्या है। सो आउट ऑफ 500 इफ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर 5 सब्जेक्ट्स, सो आउट ऑफ 100 एक सब्जेक्ट का मेरे को कैलकुलेट करना है, सो उसके अकॉर्डिंग आई कैन फिल द डिटेल्स हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, here we have to fill for class 11th and 12th details. So similarly you have to fill all the details here, like आपको यहाँ पे चूज करना है एग्जाम कौन सा आप दे रहे हैं। सो सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है आपका क्लास 11th के लिए, सो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सीबीएसई या फिर जो भी आपका बोर्ड है इसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली यू हैव टू सिलेक्ट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विच मीन्स आपका स्कूल कौन सा है, तो यहाँ पे अदर सिलेक्ट करके अगेन यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम टाइप करेंगे। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन विच मीन्स आप कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे अपने स्कूलिंग की है, सो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो कंट्री। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इंडिया। स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया, सो दिल्ली स्कूल है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में एक ही अटेम्प्ट में अगर 11th क्लास पास आउट किया तो एक ही अटेम्प्ट यहाँ पे डालेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1। ईयर ऑफ पासिंग एंड मंथ ऑफ पासिंग, आप 11th क्लास की मार्कशीट को रेफर कीजिए, वहाँ पे डेट्स दी हुई हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कीजिए। अगेन द प्रीवियस एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पे अवेलेबल है। सो अगर आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे सो वहाँ पे एक नंबर होगा, वो नंबर एंटर करना है। द नंबर इज लाइक सिमिलर टू दिस डिजिट जहाँ आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। Then again you have to enter the obtained marks and the total marks for class 11th, so उसके अकॉर्डिंग आपसे फिल कीजिए। कोई अगर बैकलॉग है किसी भी सेमेस्टर में या फिर लास्ट किसी भी ईयर में अगर आपने कोई भी बैकलॉग आया था आपका तो उसको येस या नो करके वेरीफाई कीजिए। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास यहाँ पे पेरेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे आपको फिल करना वो डिटेल्स, तो आप अपने पेरेंट्स का डिटेल फिल करेंगे। तो ये कॉलम्स मैंडेटरी हैं, इनकम पर एनम एंड नेम, सो ये दोनों कॉलम्स आपको फिल करना है। देन यू हैव टू फिल फोन नंबर। फोन नंबर अगेन ये मैंडेटरी है, सो ये नंबर आप यहाँ पे फिल कीजिए विद कंट्री कोड, सो ये आपको फिल करना, बाकी कॉलम्स मैंडेटरी नहीं है, सो यू कैन स्किप द डिटेल्स। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर आपके पास ये डिटेल्स आएगा जहाँ पे आपको फाइनल एक फोटो अपलोड करना है। सो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका फोटो साइज होना चाहिए 100 KB का और वो JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो फोटो आप यहाँ से अपलोड कीजिए। तो वो फोटो आपके पास जो होगा वो उसको रीसाइज कर लीजिएगा। अगर रीसाइज नहीं कर पाते हैं तो उसको रीसाइज करने के लिए आप उसको पेंट में ओपन कर लीजिए। पेंट में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप रीसाइज वाले ऑप्शन में जाएंगे। रीसाइज के ऑप्शन में आके उसको आप पिक्सल से रिड्यूस कीजिए।
सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका 1000 पिक्सल का या 1500 पिक्सल का फोटो है, उसको बाय पिक्सल यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हो। तो जैसे बाय पिक्सल यहाँ पे 350 या 250 का पिक्सल एंटर करोगे तो वो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। फोटो को सेव कर लीजिए। जैसे फोटो को आप सेव करेंगे एंड देन उसके बाद वो फोटो रिसाइज होकर कंप्रेस्ड हो जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन टूल से भी कंप्रेस कर सकते हो। सो नाउ जैसे आपका फोटो अपलोड हो जाता है, यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स आएगा। सो पेमेंट डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस देखना है। सो ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस विच मीन्स द एंट्रेंस एग्जाम आपको कब देना है। सो यू हैव टू सिलेक्ट द डेट्स अकॉर्डिंगली। आपको आई अग्री पे क्लिक करना है। आपने जो प्रोग्राम की अप्लाई किया उसका डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। प्रोग्राम के लिए कैंपस सिलेक्शन का प्रेफरेंस यहाँ पे शो कर रहा है। देन यू हैव टू सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट। आपको आई अग्री पे क्लिक करना है, ये जो चेक बॉक्स है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन पे ऑनलाइन। जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेमेंट गेटवे का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पेमेंट डिटेल्स एंटर करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है। सो यहाँ से अपना प्रेफर्ड पेमेंट मेथड सिलेक्ट कीजिए और उसको प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिटेल्स फिल किया है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपके पास OTP फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा एंड देन यू मेक द पेमेंट फाइनली। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स को आप सेव कर सकते हैं या फिर उसको सेव एज PDF कर सकते हो। नाउ अगर पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कहीं पे भी किसी भी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको टेक्निकल इश्यूज या फिर वो फॉर्म फिल करते टाइम कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए फॉर्म फिलिंग में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर रिस्पेक्टिव सर्विस मैनेजर्स बाय रीजन वाइज। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन कॉन्टैक्ट देम। नाउ यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपको फॉर्म फिलिंग के लिए, आप डायरेक्टली अपना फोन नंबर एंड आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में एंटर कर दीजिए। वी विल मेक श्योर कि आपको कोई हमारे एंड से कनेक्ट करे और आपको हेल्प करे फॉर्म फिलिंग में भी। सो अगर आप इनरोल भी करना चाहते हैं, सो आवर क्रैश कोर्स इज अबाउट टू स्टार्ट। जैसे ही आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे से ही हम लोग अपना आप क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे। सो क्रैश कोर्स के लिए यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं अबाउट CUET का प्रिपरेशन कैसे करना है या फिर क्या सिलेबस होगा, कैसे आपको रजिस्टर करना है, CUET की एग्जाम डेट भी आने वाली है, भी अनाउंस होने वाली है। सो आप उसी में ही चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हो। सो वन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव और हमारे एंड से कोई भी पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा और आपको कनेक्ट करके आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो वो सर्विसेज अवेलेबल है हमारे साथ। सो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी क्वेरी ड्रॉप करते हो, सो समवन विल बी देयर टू हेल्प यू। We also have preparation videos available on our YouTube channel. So if you go through the other video sections where we have the playlist, so वहाँ पे आप देख सकते हो, we already have running a series called Legal Darpan. We have a series called Vocabulary Booster, and then we also have the current affairs sessions. So आप YouTube पे ही हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो, यहाँ से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। YouTube पे हमारे करंट अफेयर की जो सेशंस होते हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है आपको प्रायर इंफॉर्मेशन आ जाए। आप लाइव वीडियो से ही ज्वाइन कर सकते हो, लाइव वीडियो से ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो हेयर यू हैव द ऑप्शन कि आप वीडियो देखते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो एंड साथ में हमारे साथ एनरोल भी कर सकते हो। सो एनरोल करने के लिए जो नंबर्स अवेलेबल हैं, प्रथम टेस्ट प्रेप हेल्पलाइन नंबर, so the numbers are available here. You can contact on these numbers. You can also log into our website or you can directly subscribe to our channel. So signing off guys, thank you very much for watching this video. Have a good day, good luck, bye, take care.